Yes, so we are talking about the translations which I gave you yesterday as homework. तो पहला क्वेश्चन था आपका, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा. If you come here, I will go with you. That's correct. Okay. And second question, let's see this. अगर वह झूठ बोलेगी तो मैं उसका विश्वास नहीं करूंगा. Try to translate in comment section those who haven't submitted the answer. Saradha ji is writing, if she tell a lie, I won't believe her. And Deepmala ji is writing, if she tell a lie, I will not believe on her. Listen, both of you are doing a common mistake first. That is, you are If writing you tell. come home, Yes. In simple present, we already know, we have discussed this, that along with third person singular, we add s or es, or you can call it verb 5, v5, fifth form of the verb. Do you know that? So, what will be the correction? Can you tell me, Deepmala ji or Shraddha ji? Like you have done, if she tell a lie, I'll not believe. Yes, Deepmala ji, that's correct. So this minor thing you must remember. If she tells, okay. So both of you will correct this statement. If she tells a lie, I will not believe her. Shraddha ji has done, and Deepmala ji has done. Believe on her. Listen to me very carefully. Believe on is generally not used. Yes, believe her is correct. Sometimes, in the case of like you are having faith in someone, for example, I believe in God, faith in someone, personality. Okay, so there you can go with believe in, but believe on is not used in modern English. It used to be part of ancient English, where if you would research, you'll find that it was used in biological writing. Believe on him, like believe on God. So that was the case. It used to be used, but in modern English, it is not accepted. So either you use believe in or you use believe. But here the statement is very simple. So I'll give priority to believe her. What is difference between believe and believe in? So believing someone, like you are believing the statement of the personality, like this is the sentence where we are talking about, अगर वह झूठ बोलेगी तो मैं उसका विश्वास नहीं करूंगा. So we are talking about what? We are talking about the statement, what is being uttered by her. So simply we will frame a sentence with believe her. Okay. And what about believe in? Is that incorrect? No, that is not incorrect, but it depends on uh, the sense you how you are taking it. If you are taking it like you are not just about after about statements, you are after about that personality as well. For example, if you have built a trust with someone, you say I believe in you. It means like you can leave anything on that personality, and that is called faith, trust, right? So you can call it I believe in you. So basic difference between believe in and believe, simple, uh, is that believe in refers to the faith in personality, and believe, simple believe, that refers to the belief on statements or something, right, uttered by um, the personality. Are you getting my point? I'm repeating once again. For example, I'm giving this example. I believe you. So it means what? It simply means I feel or I think that you are telling truth. Listen to me very carefully. This example. I believe you. It means I feel or I think that you are telling the truth, right? Which you accept as truth. And if I'm saying I believe in you, it means I have confidence in your ability, strength, or character, so that I can put my trust on you. So this is something like I'm not sure what you are going to do, how you are going to take the things, but I believe in you. Something like when somebody is going to give exam, and you say to him, you will do better. I believe in you. What does it mean? It doesn't mean that he has said something and you're accepting that, but you are having faith in that personality. And even about character, like you feel, no, 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 my son can't steal. I believe in him. Are you getting my point? So, simple belief is what?
व्हेन वी आर यूजिंग बिलीव एज अ प्लेन वर्ड, तो हम वहां पे मीनिंग करते हैं कि साधारणतः कोई स्टेटमेंट है, कोई चीज है, उस पर भरोसा करना। और बिलीव इनका करते हैं पर्सनैलिटी में भरोसा करना, ठीक है, कैरेक्टर में हो गया, स्ट्रेंथ में हो गया, या एबिलिटी हो गया, उस पर भरोसा करना। बट बिलीव ऑन जो है वो कॉमनली मॉडर्न इंग्लिश का पार्ट नहीं है। ओके, सो थोड़ा इस पे बातें कर ली हमने। ऑल राइट, दीपमाला जी, इज दिस क्लियर टू यू? टेक केयर अबाउट दिस। गुरशीस जी, यू आर ऑल्सो राइटिंग बिलीव ऑन, थिंक अबाउट इट। ओके, बिलीव ऑन नहीं करेंगे, बिलीव इन कर सकते हैं या बिलीव कर सकते हैं, सिंपल। इस वाले स्टेटमेंट में मैं प्रायोरिटी दूंगा बिलीव हर को, ठीक है। नेक्स्ट, अगर वह आज समय पर आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। दीपमाला जी इज डूइंग इफ टुडे ही कम, अगेन वन सेम थिंग, दीपमाला जी करेक्ट इट एंड राइट इन कमेंट सेक्शन। एंड आई एम चेकिंग द आंसर ऑफ श्रद्धा जी. She is writing, if he comes on time today, I will teach him. Okay, so today can be framed, there's no problem at all if you are putting it in the beginning, it's okay. Okay, but this one is also correct. If he comes on time today, you can add comma, then I will teach him. That's correct because it is first conditional. Okay, in time, you have written in time. Let me see that. On time, no. In time, you have not written, you have written on time. That is correct. ओके, समय पर आने के लिए हम ऑन टाइम का यूज करते हैं, नॉट इन टाइम। इवन लाइक देर आर डेट्स, लाइक डेज और डेट्स, उसमें ऑन करते हैं। और अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं सोमवार को आऊंगा, आई विल कम ऑन मंडे, और मैं इसको बोलूं कि मैं इतने बजे आऊंगा, तब एट का यूज करते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि एट का यूज कब करेंगे, इन का यूज कब करेंगे। तो मैंने बोला सोमवार को आऊंगा, आई विल कम ऑन मंडे। मैंने बोला जनवरी 15 2025 को आऊंगा, तो ऑन January 15 2025। अब मैं बोलूं मैं जनवरी में आऊंगा, तो वहां पर इन कर सकते। देन व्हाट इज माय मिस्टेक? नो, योर मिस्टेक इज दैट आपने वही चीज ही कम्स होना चाहिए, दीपमाला जी। मैं पहले बता चुका था, इसलिए आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट यू विल करेक्ट दिस, ठीक है। तो ही कम्स होगा, इफ ही कम्स ऑन टाइम टुडे। ओके, सो सभी लोग कर लीजिएगा इसको। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख नहीं रहे हैं, यू आर नॉट राइटिंग इन कमेंट सेक्शन। जिन लोगों ने होमवर्क नहीं भेजा है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। ट्राई टू आंसर इन कमेंट सेक्शन इन द सेम वे यू विल बी प्रैक्टिसिंग, एंड दोज हु हैव सबमिटेड दे कैन करेक्ट ऑन नोटबुक। तो जो करेक्ट कर लीजिएगा, इफ ही कम्स ऑन टाइम टुडे आई विल टीच हिम, या टुडे पहले भी लगा के कोई दिक्कत नहीं मुझसे, मुझे। नेक्स्ट, अगर आप गाड़ी तेज चलाओगे तो दुर्घटना हो सकती है। अगेन, हियर वी आर शोइंग द प्रोबेबिलिटी, राइट, पॉसिबिलिटी। हो सकती है हमने ऐड कर लिया, राइट। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। हम इसको विल के साथ कर सकते थे, बट यहाँ पे हो सकती है पर्टिकुलरली लिखा है, इसलिए हम इसको विल के साथ नहीं करेंगे, पहली बात, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बन रहा है आपका, अगर आप गाड़ी तेज चलाओगे, पहली बात ये है, हमारा फर्स्ट कंडीशन में आएगा, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, एक कंडीशन है ना। तो इफ यू ड्राइव फास्ट, तो दो तरह से बना सकते हैं, एक तो दुर्घटना हो सकती है, एन एक्सीडेंट में अकर कह सकते हैं, या फिर हैपन कह सकते हैं। एन एक्सीडेंट में अकर या हैपन, दोनों ही सही है। अब यहाँ पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज करते हैं, ठीक है, श्रद्धा जी ने इसका यूज किया है। इफ यू ड्राइव फास्ट एक्सीडेंट कैन हैपन, हाँ, कैन का भी यूज कर सकते हैं। दीपमाला जी ने कैन का यूज किया है। कैन होती है एक अच्छी पॉसिबिलिटी, गुड, गुड पॉसिबिलिटी, गुड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और कैन एबिलिटी के लिए भी होता है, पता होना चाहिए आपको। और कैन आपका इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। मॉडल्स हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको जब पढ़ाया गया था, व्हेन यू वर टॉट, यू वर टोल्ड लाइक विल, मे, कैन, मस्ट, दीज वर्ड्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड। तो यहाँ पॉसिबिलिटी की बात हुई है, तो पॉसिबिलिटी में दो चीजें बन सकती हैं यहाँ पे, मे भी पॉसिबिलिटी होती है, शायद ऐसा हो। या फिर कैन का यूज, अगर अच्छी पॉसिबिलिटी, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो कैन का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ यू ड्राइव फास्ट, एन एक्सीडेंट कैन हैपन और अकर, दोनों सही है। अकर, अकर है ना, या हैपन, या फिर एन एक्सीडेंट में हैपन या अकर, ये भी सही हो जाएगा। काइंडली मार्क दैट।
All right. Next is हम्म, अगर आप धूप में खड़े रहते हैं तो आपकी बॉडी हीट होती है। टेल मी, इज दिस फर्स्ट कंडीशनल और जीरो कंडीशनल? अगर आप धूप में खड़े होते हैं तो आपकी बॉडी हीट होती है। 100%। एंड वन मोर थिंग, इन दिस केस फर्स्ट कंडीशनल इज नॉट पॉसिबल। वन रीजन इज दिस कि हिंदी में ही लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट में। अगर आप धूप में खड़े रहते हैं तो आपकी बॉडी हीट होती है, और दूसरी बात साइंटिफिक फैक्ट भी है ना, एक तरह से। तो इफ यू स्टैंड, दिस इज द आंसर ऑफ श्रद्धा जी, इफ यू स्टैंड इन सनलाइट योर बॉडी गेट हीटेड? नो। करेक्ट दिस, श्रद्धा जी। एंड दीपमाला जी हैज रिटन इफ यू, if you stand in the sun your body gets, yes, gets hot। हीट होती है, पर्टिकुलरली बोला था तो आप हीट का यूज कर सकते थे, हीटेड हो जाता। ठीक है। गर्म होती है, अच्छा गर्म लिखा है आपने, अच्छा ठीक है, फिर गेट्स हॉट। मैंने हीट वाला शायद बोला था, तो वहां पे आप हीटेड कर सकते हैं अगर पर्टिकुलरली वही बोला है तो। ठीक है। इफ यू स्टैंड इन द सन वो भी सही है, और सनशाइन भी सही है। ठीक है। धूप की सन भी अंग्रेजी होती है, राइट। सन मीन्स धूप एज वेल, राइट। सन इज यूज फॉर noun which is the source of light, and it is also used for sunshine। तो दोनों सही है, यहाँ पर एक तरह से सेंस में बन जाता है। इफ यू स्टैंड इन सनशाइन और इन द सन, दैट्स करेक्ट। और इन सन योर बॉडी गेट्स हीटेड, या फिर हॉट अगर गर्म लिखा है आपने तो। ठीक है। गेट्स हीटेड इज, दैट्स करेक्ट, यस श्रद्धा जी, दैट्स करेक्ट। ओके, गेट्स हीटेड 100% करेक्ट है वो। ठीक है। आपको मैंने एक चीज बताई थी, अगर नहीं बताई तो सुन लीजिएगा। गेट के बाद बाद जितनी भी कंडीशन बनानी होती है, जैसे कि टूट गया, टूट जाना, गर्म हो जाना, ठंडा हो जाना, उदास हो जाना, कुछ तो नाउन होंगे, नॉन वर्ब होंगे। जो वर्ब होंगे ना, वो गेट के बाद थर्ड फॉर्म लगाइए, है ना। जैसे मान लीजिए गिलास टूट रहा है, द ग्लास इज गेटिंग ब्रोकन। या गिलास टूटता है, द ग्लास गेट्स ब्रोकन, टूट जाता है। या फिर गिलास टूट गया, द गिलास गॉट ब्रोकन, है ना। जहां पे वर्ब होगा वहां पे थर्ड फॉर्म, अदरवाइज नाउन आएगा गेट के बाद। जैसे मैं खुश हो जाता हूँ आपको देखकर, आई गेट हैप्पी सीइंग यू, और फाइंडिंग यू आई गेट हैप्पी, और मीटिंग यू आई गेट हैप्पी, है ना। तो ये सब चीज है। तो गेट के साथ नाउन लगा सकते हैं आप, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगा सकते हैं। एक कंडीशन को शो करेगा वो, कि आपकी अवस्था क्या है। कंडीशन मतलब यहाँ पे अवस्था। ठीक है। ऑल राइट। सो इफ यू स्टैंड इन द सन, फुल स्टॉप क्यों लगा दिया आरोही जी ने स्टैंड के बाद? स्टैंड इन द सन कॉमा, योर बॉडी गेट्स हीटेड होगा या गेट्स हॉट होगा, बोथ आर करेक्ट। अगर गर्म लिखा होगा, हीट बोला था तो पर्टिकुलरली वहाँ पे हीटेड ही करेंगे। ठीक है। तो ट्रांसलेशन के बेसिस पे वैसे हॉट भी सेंस में सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगर आप ठंडी चीज खाते हो तो आपका गला खराब हो जाता है। टेल मी, जीरो और फर्स्ट कंडीशनल। एक चीज ऑब्वियस दे रखी है यहाँ पे। सर वॉइस नहीं आ रही है। इज माई वॉइस क्लियर नाउ? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? वेट। यस, एम आई ऑडिबल नाउ? यस, यस आई एम ऑडिबल। इफ यू ईट कोल्ड थिंग्स yours thought, no Gurshit ji, correct it, yours, why are you adding yours? Okay, I'm reading the answer of Shraddha ji first. um, Shraddha ji, you have not done this? Wait, Deepmala ji,
यस, इफ यू ईट कोल्ड थिंग्स योर थ्रॉट विल गेट सोर। यू आर एडिंग गेट्स, नो दैट्स नॉट पॉसिबल। विल के बाद गेट्स तो कभी नहीं आ सकता ना। योर थ्रॉट, और पहली बात आपने क्या किया, यहाँ पे विल क्यों लगा दिया है? एक चीज देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, ये आपका पॉजिटिव उसमें दे रखा है, गला खराब हो जाता है। आपने इसको उसमें ले लिया है फर्स्ट कंडीशनल में। ठीक है, पहले इसको समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ये आपका सिंपल प्रेजेंट में ही दे रखा है आपका ऑलरेडी, मतलब हिंदी ही सिंपल प्रेजेंट में दे रखा है। अगर आप ठंडी चीज खाते हो तो आपका गला खराब हो जाता है। प्रायोरिटी मैं किसको दूंगा? मैं कहूंगा यहाँ पे इफ यू ईट कोल्ड थिंग्स योर थ्रॉट विल, नहीं, योर थ्रॉट गेट्स सोर, आई विल प्रायोरिटाइज दिस वन। ठीक है। हाँ, अब आपको अगर मैं कहना चाहूँ क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे है फर्स्ट कंडीशनल की, तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये वाक्य इस तरह से लिखा होता, अगर आप ठंडी चीज खाएंगे तो आपका गला खराब हो जाएगा, ठीक है, तो मैं उस तरह से ज्यादा इसको मैं प्रायोरिटी देता कि उसमें भी जा सकता है, क्योंकि ये सबके लिए सच नहीं होगा। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ठंडी चीज खाते ही रहते हैं पर उनका गला खराब नहीं होता। तो मैं इसको एज कॉमन ट्रुथ नहीं ले सकता, है ना, जनरल ट्रुथ नहीं ले सकता कि सबके लिए सच हो जाए, है ना, पर्सनल वे में ले सकता हूँ। ठीक है, तो वो जो चीज ठीक है, लेकिन पर्सनल वे में ले सकता हूँ और जनरल टूर्स नहीं ले सकता, वो बात एक तरफ है, उस हिसाब से मैं फर्स्ट कंडीशन में जाऊंगा, सही बात है। लेकिन अगर मैं इसको देखूं हार्डकोर ट्रांसलेशन, तो मैं इसमें देख रहा हूं कि अगर आप ठंडी चीज खाते हो तो आपका गला खराब हो जाता है। तो यहाँ पर दे रखा है, तो इस हिसाब से अगर मैं ट्रांसलेट करना चाहूँ तो मैं कहूंगा कि सिंपल प्रेजेंट में ही दोनों बनाना चाहिए, है ना। यहाँ पर शायद पर्सनल टूल्स के रूप में बात कही गई है ना, कि आप जब भी खाते हो ना ठंडी चीज, तो आपका गला खराब होता ही होता है। एक तरह से ये भाव दिख रहा है इसमें, इसलिए मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ इफ यू ईट कोल्ड थिंग्स योर थ्रॉट गेट्स सोर। ठीक है। बाकी अगर इसको थोड़ा इस तरह से बोलते, या फिर अगर हम हिंदी की केयर ना करें, हम डायरेक्टली सेंस के आधार पर करें, तो वो भी आपका सही होगा, इफ यू ईट कोल्ड थिंग्स योर थ्रॉट विल गेट सोर। पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पर हिंदी दे रखी है आपकी सिंपल प्रेजेंट में, इसलिए मैं उसको नकारना चाहूंगा। ओके, इफ यू हैव, हाँ हैव भी कर सकते हैं एट की जगह, इफ यू हैव कोल्ड थिंग्स, खाने के लिए हैव भी हो जाएगा। कोल्ड थिंग्स योर थ्रॉट थ्रॉट गेट्स सोर, गेट्स सोर, थ्रॉट सिंगुलर है ना इसलिए। ठीक है, दीपमाला जी आपने यहाँ पे विल गेट किया है, वो सेंस के आधार पर सही होगा, बट यहाँ पर हिंदी के हिसाब से नहीं होगा सही। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर हिंदी ये होती, अगर आप ठंडी चीज खाओगे तो आपका गला खराब हो जाएगा, तो दोनों सही होते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन में भी हम उसको कर सकते थे, ऐसे ले सकते थे। और वैसे भी ये हमारा देखा जाए तो एक तरह से अगर हम देखेंगे उस वाले में, अगर खाओगे तो गला खराब हो जाएगा, तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी चली जाएगी फर्स्ट कंडीशनल को। क्यों? क्योंकि ये सबके लिए सच नहीं होता। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर मैं इसको बोलता, अगर आप ठंडी चीज खाओगे तो आपका गला खराब हो जाएगा, तो इसमें प्रायोरिटी किसको जाती? फर्स्ट कंडीशनल को जाती, क्योंकि ये साइंटिफिकली सबके लिए सच नहीं है, राइट। तो वहां पर मैं कहता इफ यू ईट कोल्ड थिंग्स यू योर थ्रॉट विल गेट सोर, फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती। बट अगर हम इसको सेंस में लेना चाहते तब वहां पर जीरो कंडीशन होता है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है सिंपल प्रेजेंट में, ऑलरेडी खाते हो तो गला खराब हो जाता है, तो इसमें प्रायोरिटी चली गई किसकी? जीरो कंडीशनल की। तो ये चीज आप थोड़ा याद रखेंगे, देखेंगे किस तरह से बात हो रही है। इसी, ये हिंदी के हिसाब से मैंने सेंस लिया। तो ऐसे ही मैंने आपको कल समझाने की कोशिश की थी, जैसे दीपाला जी का क्वेश्चन था कि क्या हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने दो बातें समझी थी कि साइंटिफिक फैक्ट है तो 100% आपका उसमें ही जाएगा, किसमें? जीरो कंडीशनल में। साइंटिफिक फैक्ट को नकार नहीं सकते, पर कुछ चीजें होती हैं जो पर्सनल ट्रुथ पर डिपेंड करती हैं, तो वो उसमें फिजिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसको आप चेंज कर सकते हो, जीरो में भी डाल सकते हो या फर्स्ट में भी डाल सकते हो। बट अगर आपका हिंदी में ही ऐसे आ गया तो वो पर्सनल ट्रुथ को और ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा है, तो वहां पर कोशिश कीजिए फर्स्ट कंडीशनल को प्रायोरिटाइज करने की। ठीक है, बाकी सेंस के आधार पर आपका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अरे नहीं, ये तो रिपीट हो गया, ओके। अगर वह मदद मांगेगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। मदद मांगना की आस्क फॉर हेल्प होती है, या आस्क फॉर असिस्टेंस भी कर सकते हैं। तो दीपमाला जी ने किया है इफ ही आस्क, सही कर लीजिएगा दीपमाला जी, वही मिस्टेक है इसमें भी, काइंडली करेक्ट इट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इफ ही आस्क्स फॉर हेल्प आई विल हेल्प
हिम, मैं उसकी मदद करूंगा। इफ ही आस्क्स फॉर हेल्प, या फॉर द असिस्टेंस, या फॉर द हेल्प, आई विल हेल्प हिम। तो ये हो जाएगा इफ ही आस्क्स, आस्क्स फॉर हेल्प, आई विल हेल्प हिम। नेक्स्ट है, अगर आप बिना हेलमेट बाइक चलाते हैं तो चालान करता है। अब इस चीज को देखिएगा, मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। पहले तो इसमें दे रखा है चलाते हैं तो चालान करता है, तो आप प्रायोरिटी किसको देना चाहेंगे? और एक चीज सेंस में भी बात बन रही है कि ये होता है या नहीं होता है। हाँ, मानते हैं कि बहुत जगह नहीं होता। तो प्रायोरिटी किसको देना चाहेंगे इसकी हिंदी के आधार पर, जल्दी से? जीरो या फर्स्ट? एवरीवन। चलाते हैं तो चालान कटता है। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि आप जब भी चलाते हैं चालान कटता ही कटता है ना? रूल तो ऐसा ही है, लेकिन बहुत जगह नहीं करता, तो वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ प्रायोरिटी हम किसको देंगे? यस, यू आर राइटिंग वेल, जीरो को ही देंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में दे रखा है। करेक्ट। तो इसको बनाएंगे, आप ट्रांसलेशन करेंगे इसका। बाइक चलाने की होती है राइड बाइक। तो अगर आप बिना हेलमेट बाइक चलाते हैं तो चालान कटता है। ट्रांसलेटेड। वॉइस फिर से नहीं आ रही है? वेट। इज माई वॉइस क्लियर नाउ? इज माई वॉइस क्लियर? अभी आ रही है क्या, एक बार बताइए। यस। करेंगे इसको। ठीक है। हम जानते हैं कि अगर ये होता, उसमें अगर आप बिना बाइक हेलमेट बाइक चलाएंगे तो चालान कटेगा, तो उसमें हम जा सकते थे फर्स्ट के साथ। बट यहाँ पर एम्फोसाइज हो गया, तो हम यहाँ फर्स्ट के साथ नहीं जा सकते। बताएंगे आप लोग। बाइक चलाने की राइड बाइक हो जाएगी विदाउट हेलमेट। चालान कटना ही क्या हो जाएगी? चालान को इशू किया जाता है ना। तो यू के साथ भी कर सकते हैं, यू विल हैव अ चालान। ओके। और ज्यादा सिंपल हम लगता है चालान कटना की, चालान गेट्स, गेट्स के साथ इशूड कर सकते हैं, गेट्स इशूड। कीजिएगा जरा। ओके। ओके, आई एम रीडिंग द आंसर। सो दीपमाला जी हैज आंसर्ड, इफ यू राइड बाइक विदाउट हेलमेट यू विल बी फाइंड। हाँ, सेंस में बन जाएगा ये। हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा दीपमाला जी। अ, आपने यहाँ पे वही चीज है, हिंदी को थोड़ा आपने प्रायोरिटी नहीं दी है। सेंस के आधार पर आप कह सकते हैं यू विल बी फाइंड, बट वो मैं इसको प्रायोरिटी दे देता अगर यहाँ पर अगर आप बिना हेलमेट के बाइक चलाएंगे तो चालान कटेगा, तब मैं प्रायोरिटी देता। पर इस केस में आई एम सॉरी, प्रायोरिटी नहीं दे पाऊंगा इसको, क्योंकि अगर मैं हार्ड कोर ट्रांसलेशन पे जाऊंगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। इफ यू राइड बाइक विदाउट हेलमेट, यू विल बी को आप गेट्स फाइंड कह सकते हैं, या फिर यू के साथ ना बनाना चाहे तो चालान के साथ भी बन सकता है, चालान गेट्स इशूड, है ना? इफ यू राइड बाइक विदाउट हेलमेट यू विल बी फाइन, सेंस के आधार पर सही है, गुरसीत जी ने भी सेम ही लिखा है। सेंस के आधार पर सही है, बट याद रखेंगे, मैं किस पे एम्फोसाइज करना चाह रहा था कि ये अगर हिंदी में इस तरह से लिखा है तो हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी उस पर दे सकते हैं। जनरल रूल तो यही होता है। ठीक है। अब ये मान लीजिए कहीं पर लिखा हो सकता है रूल के रूप में कि आप चलाते हैं तो कटता है भाई चालान। इफ यू राइड द बाइक विदाउट हेलमेट द चालान गेट्स इशूड, या यू गेट्स फाइंड, और यू पे फाइन, ये भी आपका सेंस पे आ सकता है, यू पे फाइन। ये आप इसमें ये भी कर सकते हैं चाहे तो, एक होता है वर्ड इम्पोज, आर के साथ लग सकता है ये, यू आर इम्पोज्ड अ फाइन, सेंस में वो भी आ जाएगा। ठीक है। जैसे यू विल बी फाइंड है तो आप इसको यू आर फाइन भी कर सकते हैं, सेंस में वो भी आ जाएगा। ठीक है। या फिर द चालान गेट्स इशूड। करेक्ट। तो कर लेंगे इसका, इफ यू राइड द बाइक विदाउट हेलमेट द चालान गेट्स इशूड। अगर, फिर मैं बताना चाहूंगा दूसरा यूज इसका सेंस के आधार पर कैसे ही होगा वो। अगर आप बिना हेलमेट के बाइक चलाएंगे तो चालान कटेगा, तो यहाँ पे करेंगे आप,
If you ride the bike without helmet, the challan will be issued. Right? Challan will be issued. Correct. Next, अगर अगर आप चाय में चीनी डालते हैं तो मीठी हो जाती है। टेल मी, जीरो और फर्स्ट। ये तो ऑब्वियस है, बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट होगा ये। अगर आप चाय में चीनी डालते हैं तो मीठी हो जाती है। क्या मीठी हो जाती है? चाय, ऑफ कोर्स, राइट। बिल्कुल। श्रद्धा जी हैज आंसर्ड। ये तो 100% है, इसमें हम जा ही नहीं सकते, कैसे भी नहीं जा सकते, है ना। क्योंकि पहले बात तो सिंपल प्रेजेंट यूज किया हुआ है, और दूसरी बात हमें पता भी है कि 100% ऐसा होता ही है। तो इफ यू, इन्होंने किया है दीपा राजा ने, इफ यू पुट शुगर इन द टी इट बिकम्स स्वीट। ठीक है, आई एग्री विद दिस। एंड श्रद्धा जी ने, आप श्रद्धा जी, यू हैवंट शेयर्ड ऑल द स्टेटमेंट्स आई गेस। ओके, ये भी आपका सही हो जाएगा अगर आप चाय में वैसे ऐड का, अच्छा मुझे वो डाउनलोड नहीं किया, सॉरी। ओके, आप ऐड का यूज भी कर सकते हैं, चीनी डालने के लिए ऐड भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऐड शुगर इन द टी, इन टी। दीपमाला जी ने किया है, हाँ दीपमाला जी ने किया है, इफ यू ऐड शुगर इन टी इट गेट्स स्वीट। करेक्ट, इट गेट्स स्वीट। आपने बहुत अच्छे से तरह से कंडीशन का यूज किया है, गेट्स स्वीट, बहुत बढ़िया। इफ यू ऐड शुगर इन टी कॉमा इट गेट्स स्वीट, 100% करेक्ट। ठीक है, बाकी वो भी सही है। पुट का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे जनरली हम किसका यूज करते हैं? जनरली हम ऐड का यूज करते हैं, सब्जी वगैरह में कुछ डालना होता है ना, मसाला वगैरह, तो ऐड का ही यूज करेंगे आप। ठीक है, यस आई गॉट इट श्रद्धा जी, एक्चुअली द थिंग वाज दैट वो सेकंड पिक्चर वाज नॉट डाउनलोडेड, सो आई जस्ट डाउनलोडेड। ओके, so if you add sugar in tea it gets sweet, ये 100% करेक्ट है, इसके साथ मैं जाना चाहूंगा। बाकी उन्होंने जो किया है दीपमाला जी ने, वो भी करेक्ट है, बट उसको मैं जुगाड़ इंग्लिश में कहूंगा, या फिर एज अ बिगिनर लेवल पे कहूंगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे आपको बताया गया ऑलरेडी, यूजेस बताए गए आपको। ठीक है, तो इफ यू ऐड शुगर, जनरली हम ऐड का यूज करते हैं, और इट गेट्स, क्योंकि कंडीशन चेंज हो रही है, इट गेट्स स्वीट, है ना। कोई चीज मीठी हो जाती है, कोई चीज ठंडी हो जाती है, इट गेट्स कोल्ड। कोई चीज गर्म हो जाती है, इट गेट्स हॉट। तो इस चीज को याद रखिएगा, गेट, गेट और प्लस थर्ड फॉर्म, या फिर नाउन या एडजेक्टिव भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगर आप पानी में हाथ डालेंगे तो वह गीला हो जाएगा। अब ये देखिए, यहां पर तो भले ही गागी का यूज हुआ है, लेकिन बताएंगे क्या ये जीरो कंडीशनल है या फर्स्ट कंडीशनल, जल्दी से बताएंगे। अगर आप पानी में हाथ डालेंगे तो वह गीला हो जाएगा, एक ही इसमें आंसर पॉसिबल है, याद रखेंगे। यस करेक्ट, इट इज जीरो कंडीशनल। तो भले ही गागी का यूज हुआ है, लेकिन हम जाएंगे सिंपल प्रेजेंट में, क्योंकि आप हर बार हाथ डालते हैं पानी में, गीला ही होता है। अब कोई ये नहीं कहेगा सर हम तो पॉलिथीन डाल के करेंगे, हाथ डालेंगे। जनरल वे में बात हो रही है, राइट। इफ यू पुट अ हैंड इन द वाटर इट गेट्स वेट, 100% करेक्ट। या फिर पुट की जगह आप यहाँ पे कीप भी कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। श्रद्धा जी, यू हैवंट डन दिस। यस, यू हैव डन। इफ यू पुट हैंड्स इन